So it will be divided into two parts. The first part is renal corpuscle and second part is renal tubules. renal corpuscles की बात है तो इसके अंदर आप दो स्ट्रक्चर्स याद रखेंगे. वन इज बोमन्स कैप्सूल या बोमन्स कप या बोरलस. So commonly these two structures are known as renal corpuscle, and in our renal tubules we have multiple tube-like structures. We start from PCT, that is proximal convoluted tubules. Then we have the loop of Henle. After the loop of Henle we have the DCT, that is distal convoluted tubules, and then collecting ducts. So these are the parts which come under the renal tubules. और इन सबको हमने already draw करके देख लिया एक बार. Yes, याद है? Next, further in loop of Henle, this is again further divided into two parts. One is descending loop of Henle, and second one is ascending loop of Henle. Descending and ascending के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था. One is the thick part of descending loop of Henle, and one is the thin part. And same here, thick part and thin part of ascending loop of Henle. So this is the basic structures of our nephron जो हम already last class में draw कर चुके हैं. Oh, there is an important जो point यहाँ पे और याद रखने आपको, that is PCT की बात करें तो PCT is permeable for solute and solvent both. It is permeable for, guys use different color, permeable for solute plus solvent. जानते हो solute and solvent तो? So दोनों को ये allow करती है अपनी जो membrane है, wall है, उसे out और in होने के लिए. So it is allow the water और सोडियम क्लोराइड पोटेशियम जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन सबको ये आउट करवा सकती है, वहां से एब्जॉर्ब करवा सकती है. सो इट इज परमिएबल फॉर बोथ. व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लूप ऑफ हेनले, इट इज हैविंग टू पार्ट्स. वन इज डिसेंडिंग एंड सेकंड वन इज ascending. A very important point about this descending loop of Henle, it is only permeable for water, not permeable for solute. solute यहां से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते. solute absorption कहां होगा? ओनली कहां पे होगा? पीसीटी पार्ट में. मैंने लिखवाया था 65% एब्जॉर्ब होता है पीसीटी पे. देन उसके बाद सीधा हम पहुंचते हैं डीसीटी वाले पार्ट पे जहां हमने सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे आगे. The next is descending part is only descending loop of Henle is only for permeable for water, and अगर हम ascending की बात करें तो it is only permeable for solute, not for water. So ये दो पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं. वाटर का एब्जॉर्प्शन दो पार्ट पीसीटी से हो सकता है और उसके साथ में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से हो सकता है. आफ्टर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर इज इम्परमिएबल. एवरी पार्ट में बनाया था, दो पार्ट डिवाइड किए थे नेफ्रॉन के. हाफ पार्ट इधर वाला एब्जॉर्प्शन होता है, इधर नहीं होता है. सो ये ध्यान रखना है. क्लियर? हियर कलेक्टिंग डक्ट आल्सो फॉर ओनली फॉर सोल्यूट. वाटर का यहाँ पे भी नहीं होगा. आप लोगों ने घर जाके आई थिंक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और ना ही बनाया, मुझे ऐसा लग रहा है. कुछ पता नहीं चल रहा है लोगों को. सब नया नया लिख रहा है. पहले हमने कल फोटो बनाए थे और आज लिख रहे हैं, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं. फोटो क्या था और ये क्या है पता नहीं. सो दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ आवर नेफ्रॉन. मैं एक बार क्विकली वापस आपको समराइज कर रहा हूँ यहाँ पे. सो जो हम स्ट्रक्चर्स बनाई थी याद होगा आपको. वी स्टार्ट विद एफरेंट आर्टेरियोल्स, याद है? सो दिस इज एन एफरेंट आर्टेरियोल विच ड्रेन ब्लड टुवर्ड द नेफ्रॉन. देन वी हैव अ कप लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस and it's a bunch of capillaries. It is an afferent arteriole. This is an efferent arterioles. Here we have the bunch of capillaries. This is a bunch of capillaries. This is from glomerulus. Then next we have a cup-like structure here. So this cup-like structure is the Bowman's cup या Bowman's capsule. It will be continue as a PCT. मैं अभी thin और thick नहीं बना रहा हूँ, continue बना रहा हूँ, वो आप लोगों को मैंने already बता दिया. Then it will be continue as a loop of Henle, first thick part and then thin part. Then again it's a U-shaped structure, loop of Henle. It will continue as a loop of Henle. Then next after the ending of loop of Henle, here it ends as a PCT. ये यहाँ पे end हो जाएगा. इसके बाद आएगा आपका DCT. So it will be continue as a distal convoluted tubules. So this is the DCT part, and then it will drain into the collecting duct. One collecting duct drain multiple nephrons. So यहाँ हम एक ही बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारी collecting duct को drain nephron को drain करती है collecting duct. So ये basic part जो इसके हम बना रहे थे. So ये हो गया आपका. यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं सबके. This is the glomerulus, and this is the Bowman's cup. These two structure commonly known as renal corpuscle. This and this दोनों को मिला दे तो बनेगा structure वो क्या है? Renal corpuscles. Here we have the filtration membrane. This filtration membrane is having a basement membrane between these two. So this green one is the basement membrane. This is the basement membrane. So this is the basement membrane. Toward this blood vessel side, glomerular side, here we have a special type of capillaries, which is venous artery capillaries. Here we have the
Fenestrated capillaries, this is an basement membrane, and here we have the special type of cells which is known as podocytes. Here we have the podocytes. So ये कौन सी cell है? Podocytes. And this three layers structure is known as filtration membrane of the kidney. ये तीनों लेयर मिलके क्या बनाती है आपकी filtration membrane three cells. The next important part जो हमने पढ़ा था याद होगा, in between these capillaries, capillary इसके around क्या present रहेगा? A special type of cells. Around these capillaries there is a special type of cell which is known as meningeal cell. यहाँ पे around तो नहीं बना पाऊंगा मैं, ऐसे ही बना रहा हूँ ये बीच बीच में. So already बढ़ाया था मैंने. This cell is known as meningeal cell. Meningeal cell is having two specific functions. One is it's an phagocytic cell of kidney, and second function is it's a contractile cell. It can cause contraction. So the contraction होगा तो blood vessels compress होगा और उससे filtration promote होगा. So it help in filtration. दो फंक्शन इसके याद रहेंगे. One is help in the filtration. Second one is it is a phagocytic cell of our kidney. Next, this is an PCT part, proximal convoluted tubules. The filtrate will be moved like this direction. So this U-shaped structure is known as loop of Henle. ये नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं descending loop of Henle. ये ऊपर जा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं ascending loop of Henle. After ending this ascending loop of Henle, this is a DCT, distal convoluted tubules, and then it will drain into the collecting ducts. Clear? The next important part जो हमने बनाए थे यहाँ पे, there are few special type of cells which present in our nephron. The epithelial cells of these blood vessels. These are the epithelial cell of afferent arteriole, which I am drawing here. These are the specialized cell, epithelial cells of blood vessels, and these cells are known as Purkinje cell. Purkinje cells, or in other word, it is known as Lessig cell. The next part, this is an renal tubules. यहाँ से Bowman's cup के बाद जो नीचे वाला part है सारा क्या renal tubules है. So renal tubules का जो DCT वाला part है, यहाँ की जो specialized epithelial cells है, when you see this cell in microscope, they look very dark and finger-like projections. They look very dark and finger-like projections. So because of finger-like projection, they are known as macule. Macule is a finger-like projections, and they look very dark in color. That's why it is known as densa. So name of this cell is macula densa. This is a macula densa. Collectively, these two cells combine together with the plasma membrane, and they will form a single structure which is present near to the glomerulus. This is a glomerulus and near to the glomerulus. That's why it is known as this one and this one. दोनों को combine करते तो क्या बनेगा? JG apparatus. Juxta glomerulus apparatus. Juxta का meaning होता है near to the glomerulus. That's why it is known as JG apparatus. Next, work of these two cells is Purkinje cell or Lessig cell is having special type of receptor which is known as baroreceptor or pressure receptor. Baroreceptor. These are the pressure receptor responsible for the measurement of pressure inside the vessel. जो vessel से उसमें pressure कितना है उसको constant monitoring करेंगे. And that's why it is also known as BP apparatus of body. हमारी body का BP apparatus कौन है? तो आंसर होगा baroreceptor, और in kidney we have a Purkinje cell जो आपके पास baroreceptor रखती है. Macula densa cell is having special receptor which is known as chemoreceptor, and the function of this receptor is to measure the sodium in the filtrate. जो भी filtrate यहाँ से filter होके इस lumen आएगा उसके अंदर sodium का amount check करेगा. वो कौन करता है? chemoreceptor. कहाँ होता है? Macula densa के पास. That's why this is also known as laboratory of body. Laboratory of body. Clear? Here at the DCT part यहाँ पे मैंने कुछ specialized cell बताई थी. These are the specialized cell group of bunch of cells which is known as P cell or principal cells. And the aldosterone जो आज हम पढ़ेंगे RAS system के अंदर will bind on this P cell, principal cell पे bind होगा and sodium को absorb कराएगा. At the end of this P cell is having receptor for aldosterone. And at the end of this collecting duct, these are the epithelial cells of this duct, and these are also specialized cells. इनका कोई नाम नहीं है, ये epithelial cells of this duct है. And यहाँ पे किसके लिए receptors होंगे? Receptor for ADH, anti-diuretic hormone. This is the second time वापस बना दिया मैंने आप लोगों के लिए नेफ्रॉन. यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया था दो पार्ट में, याद होगा ऐसे. So from this line, this part is water permeable and this part is water impermeable. अगर आपको वाटर का एब्जॉर्प्शन इधर करना है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई भी हार्मोन कोई भी थिंग्स नहीं चाहिए. लेकिन अगर आपको इस पार्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना है यहाँ से लेके यहाँ पे कहीं पे भी, तो यू रिक्वायर्ड स्पेशल मैकेनिज्म, स्पेशल हार्मोन. लाइक यहाँ पे कराना है तो आपको एल्डोस्टेरोन चाहिए, यहाँ पे कराना है तो आपको एडीएच चाहिए, बिना उसके एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर नेफ्रॉन. हमने जो दो पार्ट बनाए थे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट renal corpuscle and this is the second part which is known as renal tubules. Clear? मूव करें. Yes, clear है. नेक्स्ट पहला हो गया पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो हमने बना दिया ऑलरेडी. नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. ये हटा दे. नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. आज ही तो नहीं आया कोई? आज कोई पहली बार बैठा है?
यस कोई नहीं आया आज तो, लास्ट क्लास में थे जब मैंने, पीछे हैं। नेप्रॉन पढ़ाया था और कोई है जो नहीं आया था? ओके, सो ये नेप्रॉन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूँ जल्दी से। पर अब क्या करें, आप लोग बनाओगे तब तक तो बहुत टाइम लगेगा। बना लिया क्या? इधर बना लो, घर पे जाके वैसे ही बन जाएगा। भी करते हैं मेरा देख देख के वजह से ही। तो फिर सेकंड हमारे पास से वो है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, अभी बताइए। सो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन बनाएगा? Filtration membrane. So filtration membrane is formed by three types of cells. The first one is endothelial cells of fenestrated capillaries. Fenestrated capillaries. Second is the basement membrane. And the third one is which type of cell? Podocyte cells of Bowman's cup. So these three membrane will form the filtration membrane in our kidney. It is very important when I will teach you about the nephrotic syndrome and glomerulonephritis. वहाँ पे ये filtration membrane बहुत important role play करेगी. Yes. There is a question जो एग्जाम में कभी-कभी पूछ ले कि कितनी, चलो लिख लो फिर पूछता हूँ मैं, जल्दी से लिख लो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट, गुजरात के अंदर एक वैकेंसी है, आई डोंट नो उसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, बट जो भी गुजरात से है वो भर सकते हैं। इधर वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं वो कोई पढ़ेगा बताएगा तभी, मैं तो नहीं पढ़ सकता, उसमें गुजराती में लिखा हुआ सारा। सो इफ यू एबल टू, हो गया ये? सो मेरा जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा था आपसे, अरे बातें बंद कर दिया करो, एक तो बातें नहीं करनी है बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि which size of molecules or substances will be filtered here, यहाँ पे जो पहुंचेगा उसकी साइज कितनी होगी जो फिल्टर्ड हो सकता है? लेस देन 5 माइक्रोन। और कुछ? साइज ऑफ आरबीसी, साइज ऑफ आरबीसी 7 माइक्रोन। क्या आरबीसी फिल्टर हो सकता है? सो आरबीसी फिल्टर नहीं होता है, इट मींस कहीं ना कहीं इसके पोलन की साइज आरबीसी से छोटा है, तभी तो आरबीसी फिल्टर नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू नो द एग्जैक्ट साइज ऑफ पोलन, अगर कभी पूछ ले तो। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो द साइज ऑफ दिस फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी जो हमने बनाई है, बीच बीच में जो गैप है, अगर हम इन पोलेंस की बात करें, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी पोलेंस की, तो इनकी होती है 70 टू 100 एनएम। एनएम इज हाँ नैनो, माइक्रोन से भी छोटा। 70 टू 100 लिखा नहीं मैंने, 70 टू 100, पहले 100 लिखना है। इट मींस साइज ऑफ दिस फिल्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे वो कौन से साइज के फिल्टर हो सकते हैं? 70 to 100 nano micron. But when you check the size of the filtrate here, the substances which is filtered here, that only 20 to 30 nano micron. इससे बड़ा इधर आ ही नहीं सकता है, क्यों? सो प्रॉब्लम ये है कि ऊपर तो बड़ा है यहाँ पे, लेकिन ये जो पोडोसाइट्स है इनके साइज कितनी है? 20 टू 30 नैनो माइक्रोन ही है, इसीलिए जो फिल्टर्ड हो सकता है वो पॉसिबल है, वो लास्ट कितना है? 20 टू 30 नैनो माइक्रोन से ज्यादा बड़ा कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे फिल्टर्ड नहीं होता है। इफ any size which is greater than this is filtering here, then there will be a pathological state, कोई ना कोई किडनी में डैमेज हुआ है तभी ये फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में या नेफ्रेटिक सिंड्रोम में पढ़ेंगे, आरबीसी फिल्टर होता है, यूरिन आता है, कोला कलर यूरिन आता है, वो कैसे आता है? क्योंकि ये डैमेज होती है तब आपको मिलेगा। क्लियर? द नेक्स्ट, ये हो गया यहाँ तक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिख सकते हो आप अगर चाहे तो, फेनेस्ट्रेशन की साइज क्या है? साइज 70 to 100 nm, and here we have the size of this 20 to 30 nm. नेक्स्ट, ये फेनेस्ट्रेशन साइज ओपनिंग जो है उसकी बात कर रहा हूँ। द नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल्स इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है उनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सी सेल आई थी? टॉप सबसे स्टार्ट करें तो सबसे वन फर्स्ट सेल आई थी मेसेंजियल सेल। सो फर्स्ट सेल इज द मेसेंजियल सेल। मेसेंजियल सेल्स, व्हाट द फंक्शन ऑफ मेसेंजियल सेल? फर्स्ट वन इज फेगोसाइटिक सेल ऑफ, फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ नेफ्रॉन और किडनी। फेगोसाइटिस मींस
इफ एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन बॉडी इस ग्लोमेरुलस में पहुंचता है तो वो उसको वहीं पे कैच करके क्या कर देगी, किल कर देगी, खत्म कर देगी। दैट इज द फेगोसाइटोसिस। और वो कौन करती है, मेसेंजियल सेल, फेगोसाइटिक सेल ऑफ किडनी। द नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो है, इट्स ए कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। कॉन्ट्रैक्टाइल cells. Contractile cell means it can cause contraction and relaxation, and with this contraction it increase the filtration, glomerular filtration rate जो हम पढ़ते हैं, जीएफआर जो आप पढ़ते हैं, वो इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस सेल का। पहला मैकेनिज्म क्या बताया था जीएफआर के लिए, जीएफआर का पहला मैकेनिज्म क्या बताया था, कैसे होता है जीएफआर, भूल गए? फर्स्ट मैकेनिज्म क्या था, which promote the GFR or presence of arterioles on both ended, नहीं बताया, भूल गए? Yes, क्या होता है? So in our body only the one single body organ जो किडनी है उसकी हम बात करें, बाकी organs की बात करें तो this is an arterioles, and in one side we have venules, and in between we have the capillaries. यहाँ पे क्या होती है आपकी, capillaries का bunch है। Normally ऐसा ही होता है, artery is having a high pressure system and vein is having a low pressure system, so blood will come with high pressure through this artery, reach here, a little bit amount will be exchange here, जिसमें आपका न्यूट्रिशन जो भी एक्सचेंज करना वो एक्सचेंज होगा यहाँ पे, and then it will again move into the venules के अंदर जाएगा। ये बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट में होता है। But in our kidney there is a problem. It is not a problem, it is a good thing. Here we have afferent arterioles, and in this side also we have efferent, basically यहाँ पे venules होना चाहिए, but यहाँ पे है क्या, efferent arterioles. It means in between these two we have the bunch of capillaries, glomerulus. So it means in both side of this capillaries we have the arterial system. इधर भी आर्टरी है और इधर भी आर्टरी है। आर्टरी का प्रेशर सिस्टम क्या होता है, हाई, इधर भी हाई। सो ये पार्ट भी कॉन्स्ट्रिक्टेड हाई प्रेशर के साथ, ये भी कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये हाई प्रेशर से ब्लड इधर आ रहा है, लेकिन इसमें और ज्यादा हाई प्रेशर है, तो ये ब्लड इधर जाएगा क्या, जितना इजीली इसमें मूव कर रहा था, जितना इजीली वेन में मूव कर रहा था, क्या उतना इजीली यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द प्रेशर सारा किसके ऊपर होगा, ग्लोमेरुलस के ऊपर, और इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेट करेगा। सो दिस इज एन वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको किडनी में याद रखना है, जो बाकी बॉडी किसी पार्ट में नहीं होता है। अदर सारी अगर हम बात करें तो 20 to 30 mm ऑफ एची प्रेशर होता है, लेकिन किडनी के अंदर ये 50 mm ऑफ एची प्रेशर होता है कैपिलरीज का, बहुत हाई प्रेशर सिस्टम है ये, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ साइड आर्टेरियोल्स। क्लियर? नेक्स्ट, सो पहली सेल कंप्लीट, मेसेंजियल सेल। नेक्स्ट सेल कौन सी है, दिस इज एन फर्स्ट, सेकंड वन इज द नेक्स्ट। जो आगे हम बात करें तो दो सेल्स हमने पढ़ी थी स्पेशलाइज्ड सेल्स, वन इज द पार्किंसन सेल एंड सेकंड वन इज मैक्युला डेंसा सेल। सो वन मोर सेल इज पार्किंसन सेल। Parkinson cell is also known as Lasik cell. The next one is Parkinson cell having special receptors that is known as baroreceptors. So it contain, now it's having baroreceptor. Baroreceptor समझ गए क्या है? Responsible for assessing pressure of vessels. It is not only present in kidney, it is present in other part also. Like carotid में आपको देखने को मिलेगा pressures of vessel. Next, the next is second cell कौन सी थी आप, थर्ड सेल यहाँ पे मैक्युला डेंसा। और अगर आपको इनकी लोकेशन में लिखनी तो आप इसके आगे लिख सकते हैं, these are the specialized कौन सी पार्ट की सेल है ये, epithelial cell of afferent arterioles, and macula densa is the specialized epithelial cells of renal tubules. क्लियर? मैकुला डेंसा के पास कौन सा रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर, और ये क्या करते हैं, चेकिंग द सोडियम इन ब्लड, इन नॉट ब्लड सॉरी, इन यहाँ पे किडनी में क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें से सोडियम का लेवल चेक कर रहे हैं। बाकी पार्ट में ब्लड में भी चेक करेंगे, बट यहाँ पे किसके लिए है, फिल्ट्रेट के लिए। एक और जो यहाँ पे याद रख सकते हैं, बैरोरिसेप्टर की बात करें तो जो आपका पार्किंसन सेल है इसकी बात करें तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। इसका काम क्या है, रेनिन प्रोड्यूस करना, रेनिन प्रोडक्शन। सो रेनिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो आंसर होगा आपका पार्किंसन सेल या लेसिक सेल। अगर रेनिन ये पार्किंसन सेल ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे जेजी सेल लिखा होगा, क्योंकि यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जेजी सेल बनाते हैं आपका। सो दिस इज एन पार्किंसन सेल एंड मैकुला डेंसा सेल। देन इसके बाद आप इसी के अंदर लिख देंगे सब हेडिंग लगा के, जेक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus. You are comfortable with my handwritings? समझ में आ रहा नहीं क्या लिखता हूं मैं, पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है मैं क्या लिखता हूं पता नहीं चलता है, और इसका एक रीजन है इल्यूजन, बिकॉज हम बहुत पास से देखते तो समझ नहीं आता है, पर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना।
क्योंकि मैं वैसे लिखता नहीं हूँ, ये पहली बार लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर किसी ने पहले पढ़ा तो आप देखोगे मैं कभी भी रेसी थ्योरी नहीं लिखवाता हूँ, पर आप लोगों का एक्सप्रेशन देख के मुझे लगा कि इनको लिखवाना चाहिए। सो चेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जेजी apparatus। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ये सारा का सारा उसमें मैंने बनाया था, सब कुछ वही, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं एक भी छोड़ा हो। बस आपके एक्सप्रेशन थोड़े कम थे इसलिए फिर मैंने कहा चलो ले लो भाई, ये भी ले लो, क्या है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। सो ये कौन बनता है, जेजी apparatus। सो Parkinson cell and macula densa. Why it is known as macula densa? Macula densa cell, combinedly known as JG apparatus. And why it is known as JG apparatus? Because it is present near to glomerulus. Juxta means near, glomerulus means glomerulus. So this is the JG apparatus. The next type of cell is P cell, or which is also known as principal cell. P cell or principal cell is having specialized cell or epithelial cells of specialized epithelial cells of DCT. Next function क्या है, having receptor for aldosterone. So aldosterone के receptors कहाँ होते हैं, तो आंसर होगा P cell या principal cell. Next last cell is specialized epithelial cell of cells of collecting tubules या collecting duct. और यहाँ पे फंक्शन क्या है, having receptor for ADH. This is all structures of your nephron. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll move on the next. This is a type of nephron. देख लिया? हाँ, ऊपर लिख ले पहले एक बार ये लोग। क्लियर है? मूव करें? हटा दे? ऊपर करना है? मतलब लिख नहीं रहे थे, थ्योरी तो लिखवा रहा था मैं, उसको भी समझ रहे थे थ्योरी को भी। कहाँ, यहाँ से और ऊपर? और ऊपर? सो जब थ्योरी लिखाते तब तो लिखना है, जब मैं समझाता हूँ तब समझना है। एक बार तो समझा दिया, आप थ्योरी तो लिखी थी, उसको भी वापस क्या समझ रहे हो आप लोग, सुन रहे हो? हैं? टाइम का इतना लिख लिया? सर सही करते रहो तुम लोग। हो गया? 3:20 हो गया, जल्दी लिखो भाई। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। दो टाइप का, कौन कौन सा? ये हो गया, हटा दे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जैक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सो इसमें कुछ लिखा है क्या, यहाँ देख ले एक बार। ये तो स्ट्रक्चर हो गई। ओके, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देते हैं हम, विच आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी लास्ट क्लास में भी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वाजा रेक्टा। याद है? वो भी लिखी लो, फिर वो भी आप भूल जाओगे कहीं। सो नेक्स्ट इज नंबर लगाना, जो भी अगला है वो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मींस व्हेन द कैपिलरीज लीव द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को जब छोड़ के जा रहा है तो कौन सा पार्ट है, इफरेंट आर्टरियोल और एफरेंट आर्टरियोल? इफरेंट आर्टरियोल। सो इन few types of nephron, the afferent arteriole continue as जो मैंने उस दिन आपको बना के भी दिखाया था, this is the nephron. So in some, not some, in most of the types of nephron, the efferent arteriole, this is an afferent and this is an efferent. So efferent arteriole move as a peritubular capillaries, and this name is indicating peritubular. Perica means around, tubular means renal tubules. So it is present around the renal tubules like this. It is present around the renal tubule. That's why it is known as peritubular capillaries. समझ रहे? Which is responsible for
ट्यूबुलर सिक्रेशन फेज जो आगे हम पढ़ेंगे रेनल फिजियोलॉजी के अंदर, इसमें सिक्रेशन वाला फेज इसी से होता है, बाकी तो पॉसिबल नहीं होता है, वापस जो सीक्रेट करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे. सो व्हाट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज? व्हेन efferent arterioles leaving the nephron, it is present around the renal tubules, this is known as पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. तो इसमें आप लिख देंगे इन दिस, red is very dangerous blue मेरे को, in this efferent arterioles leave the nephron and present around the, किसके अराउंड होगा? renal tubules, and that's why it is known as peritubular capillaries. And in few types of nephron, the next type जो हम लिखेंगे वो है vasa recta. Okay, इसका फंक्शन भी आप लिख सकते हैं. It is responsible for your यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से टाइप के न्यूरॉन आपके नेफ्रॉन होंगे जो हम पढ़ेंगे आगे. ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वाले नेफ्रॉन क्या करते हैं? यूरिन बनाते हैं. वासा रेक्टा. सो वासा रेक्टा क्या देखें? अगेन वन मोर नेफ्रॉन, दिस इज एन अगेन वन मोर नेफ्रॉन. In some type of nephron, when efferent arteriole leave the nephron, it is not present around the tubules, it is present parallel to the nephron, like this. इसके साथ जा जाएगा ऐसे. So this type of nephron जो ये आगे जाके एंड हो जाएगा इस तरह से. So ये जब इस तरह से इसके पैरेलल प्रेजेंट होता है कैपिलरीज आफ्टर efferent arterioles, अगर ये कैपिलरीज क्या है नेफ्रॉन के पैरेलल प्रेजेंट है, नॉट अराउंड द नेफ्रॉन, इट इज प्रेजेंट पैरेलल टू द renal tubules, दिस इज नोन एज वासा. ये तो है आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड दिस इज नोन एज वासा रेक्टा. And the purpose of this vasa recta is to, what is the purpose of this vasa recta? क्यों होता है ये vasa recta? Like पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का पर्पस है यूरिन फॉर्मेशन कराने में हेल्प करती है. ये क्या करते हैं? कुछ करते हैं. So vasa recta is responsible for maintaining the hyperosmotic environment in the medulla. Medullary hyperosmolality जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, nearby 1200 milliosmol osmolality होती है यहाँ पे मेडुला में. उसको मेंटेन करने का सारा रोल किसका है? इसी vasa recta का है. कैसे मेंटेन करता है? I will teach you in detail later on. So ये vasa recta. तो लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही समझ में आ रहा है. हो गया? नेक्स्ट. अरे क्या लिखना है? अभी लिखा तो दिया इसमें मैंने. ये लो ऊपर वाला. हटा दे. The next is types of nephron. So there are two types of nephron. जो यहाँ भी लिखा होगा I think. बस इतना ही लिखा, आगे कुछ नहीं, खाली है, रिक्त स्थान किया हुआ है. So first type लिखे, 80 to 85% आपके होते हैं cortical nephron and 15 to 25 होते हैं आपके medullary nephron. Extra medullary nephron क्या होते हैं यहाँ बनाते हैं पहले, फिर समझो आप इनको. So in every person body there are two types of nephron. I am drawing a beautiful kidney here. So this is a renal fascia. Now this inner part is medulla and outer part is cortex. So just understanding purpose से मैं इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, so you can understand more clearly. Now in a person when you go for microscope